Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. Students, I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acids of class 12th and its lecture 8th. Students, today's subtopics are chemical properties of carboxylic acids and then uses of the carboxylic acids. Beta. Students, in case any problem, you can mail me. My mail ID is on your screen, beta, and you can also WhatsApp me, beta. My WhatsApp number is also on the screen. Now, students, let's start with the chemical properties of carboxylic acids. बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ योर टू पार्ट्स बेटा. वन इज योर alkyl group or aryl group beta. Is that clear? Depending upon the carboxylic acid beta, whether it is aliphatic or aromatic, and then second part is your carboxyl group, or you can say carboxyl group. Now just see beta, here this is a ethanoic acid here. Now this CH3 is the methyl group, that is some alkyl group beta. That is the first part of this carboxylic acid beta, and second part is your this functional group, that is your carboxyl group beta. Now similarly here this is aromatic carboxylic acid beta. Now here this is a phenyl group beta here, that is a aryl group here, clear, and this carboxyl group is there. So we can say carboxylic acid जो है that consists of your two parts beta. One is your alkyl or aryl group and other is your functional group, that is your carboxyl group. लेकिन बेटा अगर फर्दर हम देखें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर टू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज वन इज योर कार्बोनिल ग्रुप बेटा, इज दैट क्लियर, एंड अदर वन इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एंड दैट अपॉन कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू दिस कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा. इज दैट क्लियर? सो दैट इज जो कंडेंस्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, COOH. अब बेटा since this carboxyl group जो है that is having your two other, that is the combination of your two other functional groups, so it means this carboxyl group will show the properties of carbonyl groups बेटा, और hydroxyl group की भी ये property show करेगा बेटा. So we can say this carboxyl group बेटा that is expected to show the properties of both these groups बेटा. Is that clear? Now beta, reactions involving the cleavage of OH bond. बेटा OH bond के जब हम cleavage करते हैं carboxylic acids के, clear, so that is showing that the carboxylic acids are acidic in nature beta. So acidity beta, so this acidity we can discuss when we react these carboxylic acids with the metals or alkalis beta. And beta, ये जो carboxylic acid है, they evolve the hydrogen gas when we react it with the electropositive metals, clear, and they form the salts. Even with the alkalis, they react beta to give the salts of the carboxylic acid in the same way as phenols. ठीक है बेटा, जैसे आपने अल्कोहल्स और फिनोल्स में जब किया बेटा कि फिनोल्स दे आर एसिडिक इन नेचर, और आपको फिनोल को जब आप सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते तो आपको क्या मिलता था बेटा, हाइड्रोजन गैस was evolving that time also बेटा. ठीक है, so in the same way बेटा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके क्या करेंगे, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, दे विल इवॉल्व. लेकिन बेटा अब फिनोल जो है बेटा, जब हम इसको रिएक्ट करेंगे बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो दैट विल नॉट इवॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद दीज कंपाउंड्स बेटा, बिकॉज दीज आर योर वीक बेसिस, क्लियर. लेकिन ये जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे विल रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट्स, और यू कैन से बाइकार्बोनेट्स रादर, या जनरली हम कहें बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ ही क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे, और दे विल इवॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश द फिनोल फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा, क्लियर. सो मीन्स ये जो रिएक्शन रहेगा बेटा आपका एसिड का किसके साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट्स के साथ, that is just used to detect the
क्या प्रेजेंस ऑफ योर कार्बोक्सिल group in the organic compounds beta. So we can say this reaction is used to detect the presence of carboxyl group in the organic compound beta. Now beta, just see here, this is some carboxylic acid and it is reacting with the sodium metal here, clear, and it is giving you the sodium salt of this carboxylic acid beta. ठीक है, sodium salt of your carboxylic acid, it is going to give you here beta with the evolution of this hydrogen gas beta, that is showing its acidic behavior. So here this acid is reacting with your this base beta, again it is giving you the salt of this acid and water is the byproduct here beta. Or here when this acid is reacting with your sodium bicarbonate, it is giving you the same salt here beta, that is sodium salt of your carboxylic acid, and carbon dioxide will be evolved over here beta with the water. Is that clear? So beta, now कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा, ये क्या करते हैं, पानी में जब हम डालेंगे तो दे विल डिसोशिएट टू गिव द हाइड्रोनियम आयंस एंड कार्बोक्सिलेट आयंस ये दे देंगे. क्लियर? अब नाउ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमने इसको पानी में डाला बेटा, क्या दिया इसने, हाइड्रोनियम आयन दिया. क्लियर? तो मीन्स इट इज गोइंग टू लूज दिस प्रोटोन ओवर हियर. क्लियर? जब इसने प्रोटोन लूज किया तो क्या दिया इसने बेटा, हाइड्रोनियम आयन दिया, और क्या दिया, कार्बोक्सिलेट आयन दिया बेटा. क्लियर? एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन जो है बेटा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. क्लियर? हाउ इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जो दैट इज डिलोकलाइज्ड हियर, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द डबल बॉन्ड ओवर हियर. क्लियर? एंड दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू दिस ऑक्सीजन बेटा, एंड इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन and double bond between this carbon and oxygen beta. So these are the two equivalent resonating structures of the carboxylate ion beta. Clear? And these equivalent structures are more stable because beta negative charge is here on this oxygen as well as on this oxygen beta. तो means electronegative atoms के ऊपर ही negative charge है, that's why they are more stable beta. आपने जब resonance plus one में पढ़ा होगा बेटा, तो उस टाइम आपने किया होगा कि कौन से स्ट्रक्चर जो है, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, दे आर मोर स्टेबल बेटा. मोर द स्टेबल स्ट्रक्चर बेटा, मोर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन बेटा. सो बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें आपका नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है बेटा. क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के ऊपर होता है. अगर इससे उल्टा हो बेटा कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के ऊपर है और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे बेटा, दे विल बी लेस स्टेबल. सो बेटा, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन जो है, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर है, दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है बेटा. इट मीन्स दे आर मोर स्टेबल बेटा, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स as well as they are your more stable. That's why they are contributing more to this resonance hybrid structure beta. Clear? That's why we can say this carboxylic acid जो है, that is going to give you the stable carboxylate ion beta. ठीक है, after losing the proton. That's why it is your acidic in nature बेटा, जो हम इसमें काफी डिस्कस करेंगे बेटा आगे. अब बेटा यहां हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखें ना बेटा, प्लस वन में आपने जैसे पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज जस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो बेटा यहां प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन. कंसंट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन, दिस इज अ प्रोडक्ट हियर. कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन बेटा, दैट इज अ प्रोडक्ट ओवर हियर. तो इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बेटा, दैट इज ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन, और यू कैन से दिस कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन बेटा. इज दैट क्लियर? सो स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन बेटा. क्लियर? सो बट सिंस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड बेटा, क्लियर, सो लेट्स से दिस वाटर इज इन एक्सेस, तो वाटर की कंसंट्रेशन यहां ऑलमोस्ट क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी. सो जब हम इस वाटर की कंसंट्रेशन और इसके इक्विलिब्रियम को लें बेटा, सो दिस विल गिव राइज टू द न्यू कांस्टेंट, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, एंड दैट इज इक्वल टू योर क्या बचा यहां, हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन बेटा, और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन बची बेटा. क्लियर? सो हियर इफ यू सी this Ka is directly related to the concentration of this hydronium ion beta. More the concentration of hydronium ion, more is the value of Ka beta.
more is the acidic behavior of the carboxylic acid. So beta, we can compare the acidic behavior of any acid beta in terms of your this Ka value beta, but it is more convenient to express the strength of the acid in terms of the pKa value beta, clear, rather than that of your Ka value. और ये pKa कैसे रिलेटेड है बेटा Ka के साथ? pKa जो है बेटा दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, क्लियर. सो इट मीन्स pKa is inversely related to the Ka beta. More the value of Ka, less is the value of pKa, क्लियर. सो जितनी कम pKa की वैल्यू होगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बेटा उस एसिड की. सो लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, मोर इज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एसिड बेटा. सो बेटा अब ये जो मिनरल एसिड्स हैं लाइक HCl इज देयर, H2SO4 इज देयर, नाइट्रिक एसिड इज देयर, इनकी जो pKa की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. जैसे यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दे रखी है बेटा दैट इज -7 बेटा, क्लियर. सो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. इज दैट क्लियर? जबकि जो pKa की वैल्यू बेटा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की है दैट इज ऑल्सो लो बेटा हियर, दैट इज 0.23. तो इट मीन्स दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड के साथ आपका क्या लग गया, मीन्स एसिटिक एसिड के जो हाइड्रोजन है ना तीन, CH3 COOH, तीनों की तीनों हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दी बेटा. और फ्लोरीन इज मोर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा, क्लियर. अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है. तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो उसका एसिडिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा होगा. सो बेटा इट मीन्स दिस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो है बेटा बीइंग हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस pKa इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड बेटा. ना बेटा जो बेंजोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, अगर हम इनकी pKa की वैल्यू देखें बेटा तो बेंजोइक एसिड की बेटा 4.19 है और आपका एसिटिक एसिड की कितनी है, आपकी 4.76 है. अब इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा बेटा कि किसका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है. सो दिस इज अ मोर एसिडिक इन नेचर, दैट इज अ बेंजोइक एसिड बेटा एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर एसिटिक एसिड. सो दैट्स व्हाई दिस बेंजोइक एसिड इज strong acid as compared to that of your acetic acid as it is shown here by the pKa value beta. Is that clear? पहले भी कहा कि lower the pKa value more is acidic behavior beta. So now beta ये भी बात किया हमने कि smaller the pKa value stronger is the acid, means more is the tendency to lose the proton beta. और बेटा यहां हम कह सकते हैं कि जो आपके strong acids हैं they have the pKa value less than 1. लेकिन बेटा ऐसे एसिड जिनकी pKa की वैल्यूज है 1 और 5 के बीच में है बेटा दे आर कंसिडर्ड टू बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा. इज दैट क्लियर? और जिनकी pKa की वैल्यू बेटा 5 से ज्यादा है और 15 से कम है बेटा वो क्या है, दे आर योर वीक एसिड्स. और जिनकी वैल्यू बेटा 15 से भी ज्यादा है दे आर योर एक्सट्रीमली वीक एसिड्स बेटा. अब बेटा ये जो pKa की वैल्यू है कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो द कंसेप्ट कि लोअर द pKa वैल्यू बेटा स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. इज दैट क्लियर? ना बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वी कैन से दे आर योर वीकर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मिनरल एसिड्स. ठीक है, क्योंकि मिनरल एसिड में pKa की वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा. इज दैट क्लियर? लेकिन ये अल्कोहल और फिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा. क्लियर? अगर हम इनकी pKa की वैल्यू जो है कंपेयर करें बेटा तो इसमें हम मैं जाना नहीं चाहता. क्लियर? ओके, नाउ जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बेटा वी कैन से दे आर अमंग अस द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर? नाउ बेटा अभी जैसे कहा मैंने कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर अमंग अस द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और दूसरा बेटा जो फिनोल्स हैं, जैसे आपने अल्कोहल और फिनोल में पढ़ा होगा बेटा कि फिनोल जो है दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बेटा. और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको प्रॉपर्ली लर्न ही कर लें. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन लर्न देम बेटा, लर्न देम बेटा.
देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। तो बेटा अगर हम इनको अरेंज करें तो आपका आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल एंड अल्कोहल में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे कम कौन हुआ? फिनोल बेटा। इज दैट क्लियर? और उससे कम कौन हुआ? दैट इज अल्कोहल बेटा। सो वी कैन सी हियर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे आर अमंगस्ट द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा। ओके बेटा, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द फिनोल्स। ओके, अब ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा? वी कैन एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द क्या कार्बोक्सिलेट आयन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की आयनाइजेशन से बनेगा बेटा, और फिनॉक्साइड आयन जो आपका फिनोल के से जब आपका ये प्रोटॉन देगा बेटा तब बनेगा। इज दैट क्लियर? सो जब हम इनकी दोनों की फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनेट की आयन की जो आपकी स्टेबिलिटी और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे देन बेटा यू विल फाइंड कि जो आपके कार्बोक्सिलेट आयन्स हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर फिनॉक्साइड आयन और यू कैन से फिनेट आयन। क्लियर? वो कैसे बेटा? अभी अगर हम वन बाय वन देखें। ओके बेटा, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपका क्या करता है, आयनाइज करता है और आपको क्या देता है? कार्बोक्सिलेट आयन देगा और प्रोटॉन देगा। क्लियर? तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। कौन? कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज स्टेबिलाइज्ड बाय द टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे? अभी पीछे हमने डिस्कस किया बेटा कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज एट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन हियर। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल बेटा। क्लियर? जैसे यहां भी देखें बेटा, अगर आप यहां कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आयनाइजेशन हो रही है तो दैट इज गिविंग यू दिस कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? और प्रोटॉन दे रहा है दैट इज गिविंग यू दिस हाइड्रोनियम आयन ओवर हियर। सो हियर सी दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑन दिस ऑक्सीजन बेटा। क्लियर? तो दैट इज अ कार्बोक्सिलेट आयन हियर। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड, वन ऑफ द लोन पेयर ऑन दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 3 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नॉट शोन ओवर हियर। सो दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड बेटा। Clear? So this negative charge is delocalized, it means from this oxygen to this oxygen here. So this electron pair will shift to here, will form this pi bond here, and this pi bond will shift to this oxygen beta, will form the lone pair over here. So 3 lone pair यहां हो जाएंगे बेटा। अदरवाइज यहां कितने हैं? 2 lone pair हैं, that is not shown over here. Clear? और यहां नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा। अब ये क्या है? ये दोनों ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? क्यों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है दैट इज प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओवर हियर, दैट इज ऑक्सीजन ओवर हियर। दिस इज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन बेटा। क्लियर? सो इट मींस दीज आर द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल बेटा। इज दैट क्लियर? और दे विल इक्वली कंट्रीब्यूट टू दिस रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा। इज दैट क्लियर? Now, since this carboxylic acid is giving you the stable carboxylate ion upon losing this proton beta, तो it means this is your more acidic beta. अब हम अगर फिनोल की बात करें बेटा, क्योंकि हमने फिनोल से इसको कंपेयर करना है, ये तो हमने सिंपल बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर बेटा। अब बेटा अब मैं बात करता हूं फिनोल की बेटा। जो आपका फिनोल है बेटा, इसका ये क्या देगा अपॉन आयनाइजेशन? प्रोटॉन देगा बेटा और फिनॉक्साइड आयन देगा। और ये जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा बेटा, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो हम पाएंगे कि देयर आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा, जिनमें क्या है? जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज प्रेजेंट एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कार्बन बेटा। अगर आप फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो आप पाएंगे कि आपका नेगेटिव चार्ज एक तो ऑक्सीजन के ऊपर है एक स्ट्रक्चर में, और बाकी में क्या है आपके बेटा? नेगेटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम बेटा, दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इट मींस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट resonating structure. You can say these are your non-equivalent
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो आपका रेजोनेंस है बेटा फिनॉक्साइड आयन में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज इट इज इंपॉर्टेंट इन द कार्बोक्सिलेट आयन बेटा। अब सी बेटा, ये नाउ दिस इज फिनोल हियर, अपॉन गिविंग दिस proton beta, it is giving you this phenoxide ion, so negative charge is on this oxygen here beta. Now this negative charge is delocalized throughout this ring beta. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां आया बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया यहां, क्लियर, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां बन गया इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। नाउ नेगेटिव चार्ज यहां से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया, सी दिस इज डबल बॉन्ड हियर। सो नेक्स्ट जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन दे आर शिफ्टिंग टू योर दिस कार्बन बेटा, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टिंग टू बिटवीन दिस कार्बन एंड इज गोइंग टू फॉर्म दिस पाई बॉन्ड हियर बेटा, यहां पाई बॉन्ड बना दिया इसने, और ये अगला पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर शिफ्टिंग टू दिस कार्बन बेटा एंड इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज हो गई है, क्लियर। और अल्टीमेटली ये वाला कहां शिफ्ट कर जाएगा बेटा, यहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज फिर से इसमें मींस ये फिर से ये वाला स्ट्रक्चर दे देगा, लेकिन जो ये आपका पाई बॉन्ड होगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में होगा, यहां नहीं बनाया बेटा, क्लियर। सो यहां हम देखें बेटा, तो आपका जो ये कार्बन एटम है जहां नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन एटम है जहां ये कार्बन एटम है जहां नेगेटिव चार्ज है, और ये जस्ट सी हियर, चलिए मैं अलग अलग स्ट्रक्चर पे बता देता हूं नेगेटिव चार्ज कहां कहां है। एक यहां है कार्बन बेटा, एक यहां वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे। सो मींस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो भी कार्बन है, इज दैट क्लियर, दैट इज हैविंग योर नेगेटिव चार्ज, इट मींस, और ये कार्बन क्या है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मींस दे आर योर लेस स्टेबल बेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट मच टू द क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा, इट मींस दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, क्लियर, एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आर इंपॉर्टेंट हियर, क्लियर। सो वी कैन से दिस phenoxide ion is not that much stable as compared to the carboxylate ion beta. So carboxylate ion ज्यादा stable होने की वजह से बेटा that is easily formed, and that's why the carboxylic acid जो है that is more acidic as compared to that of your phenol. See here ये phenol के structure है, but this is not the concern for the time being बेटा, so I'm not going to do, clear। लेकिन बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि explain the acidic behavior of the phenol. Is that clear? Yeah, you can say why phenol is acidic in nature. So बेटा आपको इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करना होगा, लेकिन अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। नाउ बेटा जस्ट सी हियर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर, ये वही जो हमने अभी किया बेटा, क्लियर। और ये आपके फिनोल जो आपका फिनॉक्साइड आयन दे रहा है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन दे रहा है, क्लियर। सो इन्हीं की स्टेबिलिटी यहां हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर से बेटा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमने डिटेल में कर चुके हैं। अब सी बेटा, अब यहां सिंपली लिखा है जैसा जो भी मैंने अभी बोला बेटा, कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिलोकलाइज्ड ओवर द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है बेटा, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिलोकलाइज्ड हियर बिटवीन दीज ऑक्सीजन एटम्स हियर बेटा, ठीक है। लेकिन जो आपका फिनॉक्साइड आयन है बेटा, उसमें क्या है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है दैट इज लेस इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड हियर, ठीक है। एक ऑक्सीजन के ऊपर है और आपके बाकी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर आ रहा है, तो इट मींस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आयन दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज योर दिस वन बेटा, मींस दे आर योर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर carboxylate ions, you can say, clear। That's why carboxylic acid is more acidic as compared to that of the phenol beta. So carboxylic acid, अब वही बेटा जो अभी मैंने बोला वही चीज यहां लिखा है होगा बेटा। So that carboxylate ion is more stabilized than the phenoxide ion. So carboxylic acids are more acidic than the phenols beta. So beta subscribe my channel, like and share my videos beta. With this, thank you, have a nice day.